today's topic is the pH scale, right? Okay, what is the meaning of pH? pH means that is the power of hydrogen. Okay, that is the scientist was the Sorensen in 1909. उसने एक scale दिया, that was the pH scale, and the full form we can say that is the power of hydrogen ion concentration, and the formula was pH that is equal to the minus log of hydrogen ion concentration. सिर्फ उसने hydrogen ion की concentration को consider किया and says that कि with the help of hydrogen concentration we can predict that कि substance जो भी solution है that is the acidic, basic or neutral, right? With the help of that formula we can easily predict कि substance solution salt acid जो निकालते हैं हम अपना उसकी pH वैल्यू पे से we can predict that कि वो acidic है, basic है या फिर neutral है. Okay, so उसने जो scale दिया that was the pH scale and बताया मैंने that is the power of hydrogen ion concentration, and then उसने pH scale जो mention किया कहते हैं उसने mention 7 6 5 4 3 2 1 and 0, right? And इधर हमारे उसमें से इस 7 से less है तो that will be the acidic, and more than 7 that is the basic. Okay, तो जितना ज्यादा pH वैल्यू उतना ज्यादा basic होगा, जितनी कम pH वैल्यू उतना सब्सटेंस एसिडिक होगा. pH वैल्यू 7 मिल रही है तो सब्सटेंस हमारे पास न्यूट्रल है. ओके, दैट इज द pH वैल्यू 7 shows that substance is neutral. जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं that is the pH value is 7. Okay, so that is the scale given by the Sorensen in 1909. Power of hydrogen formula you should know that pH is equal to minus log of hydronium ion minus log of hydrogen ion concentration. Logarithm बताऊंगा. अभी in your syllabus note numericals are there. High classes that numerical will become, right? Firstly you should know that the pH scale. Okay, that is the pH scale बताया. And after that कहता है कि how can you measure that? इतना बताया कि pH value less than 7 है, ठीक है, तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, मोर देन 7 है, सब्सटेंस बेसिक होगा. अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेके चलें that is -1, that is -2. In this way this is the concentration of hydrogen ion. With that this we can find out the pH value, right? Okay, and the measurement pH को कैसे measure किया जाता है? Measurement pH को measure करने के लिए we have a tool. Firstly तो that is the national indicator हम बोलते हैं अपना, that is the pH paper, yes, that universal indicator, sorry, that is the universal indicator कि with the help of pH paper we can predict that the substance is acidic, more acidic, basic, more basic, neutral. तो pH paper के through उसके ऊपर color mention होते हैं. We will proceed in the lab that practicals in our syllabus practicals are there. तो pH paper के through we can predict that कि we can say that 0 to 3.5 तक जो रहता है that it becomes red color, shows that कि acidic है. 3.5 to 5 तक we can say that is the orange, less acidic, and 5 to we can say that 7 तक that is the light orange color, shows that the yellow color shows that. In this way we can with the help of color notice, with the help of pH paper we can predict that कि वो substance acidic dip करते हैं. जैसा color change होता है, number of केमिकल्स के थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू बना रखा होता है उस पेपर को, तो उस पेपर पे कलर के थ्रू वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि वो सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. और बिल्कुल रेड कलर मिल रहा है इट मींस एसिडिक है, ब्लू कलर मिल रहा है ब्लू है, बेसिक है. तो विद द हेल्प ऑफ कलर नोटिस वी कैन प्रेडिक्ट दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक. तो दैट इज द पीएच पेपर यूजफुल फॉर अस and that is called a universal indicator. With the help of this we can predict that the nature of the substance. And at present now we are using that at present पहले तो नहीं था, and then we have an instrument pH meter. With the help of pH meter we can predict that the acidic and basic character of the substance. So we have a two-way with the help of which we can measurement the pH scale. Okay, pH value. And then what is the importance in our life of the pH? pH का हमारी लाइफ में क्या क्या मेजर रोल प्ले करता है? Okay, so move करते हैं. That is the firstly human beings and animals, right? What is the role of pH in human beings and animals? Start. Okay, that what is the importance? We mentioned that the values are there.
importance of the pH. First one, that is the human being and the animals. In our body we can say that कि mainly जो pH value है that is the range 7.7 to 7 to 7.8. ठीक है, इसकी वैल्यू में जहां ऊपर नीचे वैल्यूज होती है pH वैल्यू की, with the help of this we can predict that that person is suffering from that some diseases. यूरिन होता है, दिस वे उससे उसके टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि उसमें पीएच वैल्यू वी कैन से दैट गैस्ट्रिक जूसेस जीजे दैट इज द गैस्ट्रिक जूसेस में पीएच वैल्यू 1.6 टू 1.8 रहती है. पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर वी कैन से दैट वैल्यू 7.80. सलाइवा जो माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, यू नो दैट द बायो में डाइजेशन प्रोसेस होता है, वैल्यूज 5.5 टू 6.9, बायो 7.6 टू 8.6. ब्लड दैट इज द पीएच वैल्यू. जहां भी इस पीएच वैल्यू में चेंज आता कि टेस्ट लेते हैं अपना, हाँ जी इस पीएच वैल्यू में चेंज आ रहा है, इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं कर रही है, कम है ज्यादा है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीजेस. तो विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज और नॉट, राइट. तो दैट इज ए यूजफुल फॉर अस, राइट. एज अ सेकंड वन दैट इज द सॉइल पीएच एंड द प्लांट ग्रोथ. ओके, पीएच का सॉइल because that plant growth में मेजर रोल प्ले होता है. एग्जांपल मेंशन किया मैंने, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस सिट्रिक एसिड रहता है, तो नेचुरल बात है कि जब सिट्रस फ्रूट जिसमें उगाया जाएगा उसकी सोइल की पीएच को चेक करते हैं कि हाँ जी दैट इज द एल्कलाइन नेचर, दैट इट्स ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर द नरिशमेंट ग्रोथ फॉर द सिट्रस प्लांट. तो अगर राइस को देखना है, राइस को लगाना है, राइस के प्लांट्स के लिए उस सोइल को चेक किया जाता है कि हाँ जी ये सोइल एसिडिक है, देन वी कैन produce the rice crop. And then for the sugarcane crop the soil should be the neutral, so that with the help of pH value the number of centers are there in Himachal also, with the help of in the centers number of tests it takes place and the soil take place from that part and test करते हैं, check करते हैं कि what is the pH value of that soil and what is the sufficient crop, what is the good crop for that type of soil. So with the help of this pH value we can predict that which crop is the better for that type of soil. Okay, and that is the second importance. And third one, that is the pH in digestive system. We have done that in the bio. जब भी फूड इनटेक करते हैं हम अपना फूड हमारा स्टमक में माउथ से डाला गया, टायरिन प्रोसेस एंजाइम डिसॉल्व इन सलाइवा प्रोड्यूस होता है. हाँ जी, फूड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस, पैरासिटिक मूवमेंट आर देयर. हाँ जी, फूड पहुंचता है हमारा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टमक पोर वी कैन से नंबर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड. And gastric juices में major three substances, pepsin, mucus and the HCl. And the pepsin is an enzyme that will be activate in the HCl, acidic medium. उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो अपना काम नहीं करेगा. तो उसको एसिडिक मीडियम मिला, एक्टिवेट हुआ, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक. कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन, बट जो प्रोटीन की डाइजेशन है दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से स्टार्ट होती है और वहां पर पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है. हाँ जी, फूड प्रोटीन्स को तोड़ता है, अमीनो एसिड, पेप्टोन्स एंड देन डाइजेशन विल टेक प्लेस. एंड देन वी कैन से दैट कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है, वहां पर बेसिस क्रिएट होते हैं, एंजाइम अपना काम करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, सो दैट द मेजर रोल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच आल्सो प्ले अ मेजर रोल, right? And that is the third importance. And fourth one, pH changes as the cause of tooth decay. Okay, in our teeth we can say that जो pH value हम लेके चलते हैं, tooth enamel we can say that जो बना होता है white color we can say that is the उसमें जो pH value हमारी maintain 5 point, जहाँ 5.5 से कम होनी शुरू होगी pH value. हाँ जी, teeth हमारे नेचुरल बात है कि वो एसिडिक एसिड प्रोड्यूस होता है. pH 5.5 से कम होने का मतलब एसिडिक, एसिडिक का मतलब कि वो टूथ एनेमल हमारा धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा. होता क्या है, हमने कुछ भी स्वीट खाई, कुछ भी खाया, वो दांतों के अंदर, वो टीथ के अंदर डिपॉजिट हो गया. डिपॉजिट हो गया तो हमारे बॉडी का सिस्टम है कि कुछ भी चीज नजर आ रही है उसको तोड़ो. ओके, तो वो तोड़ने पर नेचुरली बात है स्लैबा के अंदर हमारा बेस प्रोड्यूस होगा. ओके, एंड देन वो उसको खत्म, फूड स्लैबा से हमारा जो एसिडिक एसिड प्रोड्यूस होगा एंड देन वी कैन से दैट कि वो क्या करते हैं आपके नेचुरली बात है उसको खत्म करने के लिए कि जो भी आपका डिपॉजिट है वो रिलीज हो जाए. जैसे ही फूड पार्टिकल्स इनटेक किया हमने,
एसिड क्रिएट होता है इसको सिंपल खत्म करने के लिए। हाँ जी, ज्यादा अमाउंट में जब एसिड बनता जाएगा तो नेचुरल बात है वो टूथ एनिमल हमारा खराब होता चला जाएगा। सो दैट वी आर टेकिंग दैट जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं अपना, टूथपेस्ट के अंदर क्या मिक्स कर रखा होता है, दैट इज द मेन थिंग इज दैट द बेसिक इन नेचर। ओके, तो वो माउथ के अंदर एसिड बन रहा था जो टूथ एनिमल को खराब कर रहा था, पेस्ट किया गया, बेस डाला गया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ, टीथ हमारे ठीक रहेंगे। सो दैट माय सजेशन इज दैट कि आपको रात को ब्रश जरूर करना है, राइट? बिकॉज रात की ब्रशिंग जो नाइट ब्रशिंग है दैट इज अ मस्ट एज कंपेयर टू द मॉर्निंग ब्रशिंग। छोड़ दो मॉर्निंग ब्रशिंग, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द नाइट ब्रशिंग। ओके, दैट इज द यूजफुल फॉर अस वी कैन से दैट। So that is the clear values of benefit of the pH. And the fifth one is the self defense of the animals. Number of animals are there. हाँ जी, वो क्या करते हैं for the अपने डिफेंस के लिए एग्जांपल लेता हूँ, वास्प स्टिंग काटता है, स्पेशली हनी बी स्टिंग है, आंट स्टिंग भी, सो दैट वास्प जब काटता है इंग्लिश में तो वो एसिटिक एसिड रिलीज करता है बॉडी के अंदर, और आंट स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। नेटल प्लांट हिमाचल के अंदर नंबर ऑफ तीखे कांटे वाले प्लांट होते हैं, हाँ जी, सडनली टच हो जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, दैट्स अगेन उसमें भी मिथेनोइक एसिड बॉडी के अंदर रिलीज होता है। तो एसिड गया जिससे कहते हैं कि इरिटेशन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो अच्छी बात है कि एसिड अगर गया तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, विद द हेल्प ऑफ बेस वी कैन यूज द बेकिंग सोडा, ठीक है, तो दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द नेटल एंड वास्प स्टिंग। एंड इसके अलावा नेटल प्लांट के साथ ही डॉग प्लांट उसके आसपास ही रहता है, जो वी कैन ऑब्जर्व दैट डॉग प्लांट का जो उसको एज ए ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं क्योर करने के लिए। डॉग प्लांट जो रहता है दैट इज द बेसिक इन नेचर, राइट? तो अगर नेटल प्लांट का स्टिंग अंदर गया है, मिथेनिक एसिड अंदर गया है, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वी कैन यूज द डॉग प्लांट। तो दीज आर द दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ, दैट इज। एंड एक और लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कोलेजन डेंसिटी के अंदर मैंने जो बताया था कि जो कॉपर कंटेनर हम कॉपर एसिड यूज करते हैं, हाँ जी, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग, उसकी शाइनिंग जब नया परचेज किया बहुत शाइन करता है, आफ्टर सम टाइम उसकी शाइनिंग खत्म हो जाए बिकॉज उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर डिपोजिशन वी हैव डिस्कस दैट, तो वो डिपोजिट हो जाती है। तो इफ वी यूज दैट सिंपल अपना, तो दैट इज अ बेसिक इन नेचर, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दैट्स द बेस। ओके, व्हेन यू यूज दैट लेमन, ठीक है ना, दैट इज द नींबू, वी कैन से दैट लेमन सिट्रिक एसिड है, हाँ जी, यूज करते हैं, रब करते हैं, तो नेचुरली बात है न्यूट्रलाइजेशन, वी कैन से दैट न्यूट्रलाइजेशन होगा, हमारा सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, हाँ जी, वो लेयर डिपोजिशन निकल जाएगी और जो कॉपर वेसल है वो शाइन करना शुरू कर देगा। सो दैट इज द डेली लाइफ रूटीन, जो चीजें हम यूज करते हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ द पीएच स्केल। ओके, तो we will meet the next